Hello guys, welcome to the channel Agri Addict. In this session, we are going to discuss about water categories and kinds of soil water. Last class, we have discussed about what are the books we have to read for the JRF agronomy. And if you have not seen that video, then please visit the channel and you can see that video. Okay, so that you will have an idea about what are the books you should refer. Okay, so today we will discuss about what are the water categories important for all the exam like JRF, SRF, ARS, SAU, CET and others, and what are the kinds of soil water, because from this part one or two questions used to come in your exam. Understand? And also, if you have not subscribed to our channel yet, then please subscribe to our channel and please follow the channel, because uh, a lot of courses used to come like entomology, pathology, genetics and plant breeding. Those courses are also available in our channel, so that we can, if you are coming for any region, for example you are preparing for IBS A4 or other banking exams, or are related to the UPC or any state entrances also, and for any government exams, you will get all the information in this channel. Okay, so without wasting time, let's start our class. And today we will discuss about what categories and kinds of soil. Why I am telling again and again, because you should prepare psychological that we are going to study this course today or this chapter today. Okay, so let's get started. Hi, I'm water. Okay, so water is telling hi to us, so we should tell hi as well. Yes or no? Because you see, water is the indispensable thing in our earth. Okay, on the earth. Okay, it is very important. Okay, so we call it is a liquid gold. Okay, we call it is a liquid gold. Okay, so water is the liquid gold for what? For plants and any living organism present on the earth, those who cannot live without water. Okay, पानी के बिना वो जी नहीं सकते. पौधा को पानी चाहिए, हमको भी पानी चाहिए. Okay, and if you see, it is the most important constituent. About 80 to 90% of plant cells is constituted about water. Okay, अगर आप पौधे देखें या हमारे शरीर भी देखें तो 80 to 90% is only water. And this easy question is to come in the exam. Okay, in the statements and also in direct question. Understood? So there are a lot of properties of waters are there. Okay, there are a lot of properties. Okay, that we will discuss in the class, in the JRF class. Okay, so if you are interested in the joining the agronomy JRF, then you can contact us. Okay, you can contact in this number or 8917551457. Okay, you can contact in both the number, so that we will communicate to you. Okay, so water is indispensable for all of us. Okay, it is for plants as well as, and it is also for us. Okay, so due to this, Sir C.V. Raman उन्होंने क्या बोला है? What is the elixir of life? What is the meaning of elixir? Elixir means magic. Okay, elixir means magic. Okay, which makes wonder on the earth, which makes wonder on the earth if it is used properly, if we'll use it properly, efficiently, economically, environmentally, equitably and judicially. Okay, अगर हम उसको बहुत अच्छे तरह से यूज करेंगे, देन वाटर एक जादू की तरह काम करेगा हमारे लिए. ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो वाटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, और इसका जो प्रॉपर्टीज है हम क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और आज हमारा टॉपिक है कैटेगरीज एंड काइंड्स ऑफ सॉइल वाटर. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कैटेगरीज ऑफ सॉइल वाटर. ओके, so there are 6 to 7 categories of waters there, and from these 7 parts one question is to come in every exam. Okay, अगर आप ICAR JRF दे रहे हैं या SRF दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे. ओके, सो ब्लू वाटर, व्हाट इज ब्लू वाटर? ओके, पानी ब्लू कलर होगा? नहीं, इसका जो पोजीशन है ये कहाँ पे मिलता है, व्हाट इज द, वेयर इज द अवेलेबिलिटी, उसको देख के ये क्लासिफाई किया जाता है. Okay, by eyeing on that we are classifying this classification. Okay, and also the purpose and the availability of water.
is making these categories. Okay, for example, blue water, it is the water which is stored in the reservoirs. Okay, sea, pond, etc. Okay, जो पानी हमारे रिजर्वर में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, या हमारा पॉन्ड में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लू वाटर. तो ये वाटर आता कहाँ से है? जब बारिश होता है ना, ओके, तो ये रन ऑफ होके पानी कहाँ पे जाता है? आइदर पॉन्ड में जाता है, या हमारा रिवर सिस्टम में जाता है, या हमारा रिवर जाके कहाँ से मिलता है? हमारा सी से मिलता है. ठीक है, तो अल्टीमेटली the water has to be stored in the reservoir, sea and the pond. Okay, and that water has been used, and that water is utilized for the irrigation purpose. Okay, so categories of water based on the purpose, if you will see, that is also one of the classification. Okay, so blue water का purpose और हमारा जो use किया है irrigation के लिए. Okay, we can use it for irrigation very efficiently. ठीक है, देन आता है हमारा ग्रीन वाटर. कलर ग्रीन नहीं है, इसका जो अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे रहता है, उसको ये जो कलर दिया, मतलब ये नाम दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, द वाटर व्हिच हैज बीन स्टोर्ड एज सॉइल मॉइस्चर एंड आल्सो इन प्लांट. ओके, एंड if I'll be frank, then green water most of the time comes in the exam, because this water stored as soil moisture as well in the plant. Okay, जो पानी, जो बारिश का जो पानी आता है, जो पौधे में रहता है एंड मिट्टी में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन वाटर बोलते हैं. समझे? उसको हम बोलते हैं ग्रीन वाटर. फॉर एग्जाम्पल, ये एक पौधा है, ठीक है, बारिश हुआ, ठीक है, तो बारिश होने के बाद ये जो पौधा है, इसका जो लीव्स है, यहाँ पे क्या है? स्टोमाटा ओपनिंग है, तो उसके अंदर भी पानी थोड़ा जा सकता है. और यहाँ पे जो स्टेम फ्लो होता है, ओके, स्टेम फ्लो होता है, स्टेम फ्लो के कहाँ पे आता है? वो सॉइल में आता है. सॉइल में क्या होता है? वाटर स्टोर होकर रहता है, सॉइल मॉइस्चर की तरह रहता है वो. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन वाटर. सो दिस वाटर इज यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द प्लांट. ओके, पौधे का जो भी प्रोसेस है, मतलब फॉर एग्जांपल वो रेस्पिरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो, जो भी प्रोसेस हो, उसके लिए ये ग्रीन वाटर बहुत ही मायने रखता है. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फॉसिल वाटर. ओके, फॉसिल मतलब क्या है? हार्ड है क्या? अस्थि है क्या? नहीं नहीं, फॉसिल मतलब क्या है? द वाटर व्हिच हैज बीन इन्फिल्ट्रेटेड एंड स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर. ओके, जो पानी हमारे जो मिट्टी में है, मिट्टी में क्या हुआ? वो इन्फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद वो स्टोर है कहाँ पे रहा? ग्राउंड वाटर में जाके रहा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सॉइल लेयर. ओके, एंड दिस इज द पोरस सॉइल लेयर. द वाटर हैज इन्फिल्ट्रेटेड फ्रॉम द सरफेस टू द surface into the soil, and it has been stored as groundwater. Stored as groundwater, we call it is a fossil water. Called as a fossil water. So this question is used to also come in rarely, but it is used to come. Okay, आगे बढ़ते हैं. And also this water is most important, because see, whether you are a like consumer, for example, we used to dig the water from the groundwater, okay, for our daily purpose. Also, the farmers used to dig for the irrigation purpose, for example, tubewell irrigation. Okay, they used to open the groundwater. Okay, but day by day, what is happening? The groundwater level is been decreasing. Okay, so that is the major disadvantage for this. Okay, because if we will not recharge the groundwater, then we have no right to take it out. Okay, first thing, we should recharge the groundwater. Understood? Then we can take it up. So there should be a balance. I believe that there should be a balance. Okay, आगे बढ़ते हैं. Then next come is grey water. Okay, grey water क्या है? The water resulting from daily use. Okay, आप जो बाथरूम में जाके नहाते हैं, या आप जो यूटेंसिल से आप खाने के बाद जो धोते हैं, उसका पानी. ओके, तो वो जो पानी आता है, वो क्या आता है? मतलब बहुत ही, मतलब इतना भी गंदा नहीं होता है. ठीक है, वी कैन यूज दैट वाटर. सो वी कैन यूज एज इरिगेशन सोर्स फॉर द लॉन्स एंड किचन गार्डन. ओके, उस पानी को, वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर. ओके, वी शुड रीयूज दैट वाटर इन द लॉन्स और किचन गार्डनिंग में हम उसको यूज करना चाहिए. ये इसका महत्व है. ठीक है,
देन आते हैं हमारा ब्लैक वाटर। ओके, ब्लैक वाटर मतलब काला होता है क्या? हाँ, काला ही होता है, पर ये सीवेज वाटर है। ओके, द वाटर कलेक्टेड एज सीवेज। ओके, हमारे जो सीवेज एंड स्लज जो कलेक्ट होता है, वो जो वाटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सीवेज पार्ट। ओके, एंड इट कैन बी यूज, ओके, वी कैन बी यूज आफ्टर रिमूवल ऑफ द हैवी मेटल्स, बिकॉज जो सीवेज वाटर वहां पे बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स पाए जाते हैं जो कि पौधे को बहुत ही हानिकारक है। ओके, इसके लिए वी शुड रिमूव दैट हैवी मेटल्स बाय सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, सीवेज ट्रीटमेंट भी होता है, तो सीवेज ट्रीटमेंट करके अगर हम उस पानी का हैवी मेटल्स निकाल देते हैं, देन वी कैन यूज दैट वाटर। ओके, देन आते हैं हमारा वर्चुअल वाटर। वर्चुअल वाटर मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल nowadays we need to send some virtual gifts, virtual hugs, okay, because we can't go there. Suppose someone is there in the far away from us, we can't go there and we can hug that person. Okay, so for that reason we need to send the virtual things. Okay, virtual hugs, virtual gifts, virtual songs and all. Okay, so वर्चुअल वाटर मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में एक है गोलू। ओके, जिसका घर है हमारा राजस्थान में, उसका घर है फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में घर है। ओके, राजस्थान में क्या है, हमारा मस्टर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा उगाए जाते हैं। ओके, एंड आई मीन उड़ीसा। ओके, जहां पे मस्टर्ड कम उगाए जाते हैं। ठीक है, सो आवर प्रोडक्शन इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू राजस्थान। सो व्हाट विल आई डू? फॉर मस्टर्ड जितना भी पानी यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल 450 mm का पानी यूज होता है। ओके, सो व्हाई विल आई वेस्ट दैट वाटर इन उड़ीसा? व्हाई कांट आई import that mustard to the Odisha so that I will save this much amount of water? Okay, I will save this much amount of water. This is called as the virtual water. The water comes in the form of the grains to the another place. It's called as virtual water. You can see it is the water used in producing grains or animal products is better for not growing areas to import the product from the place which is grown best. Okay, जहाँ पे अच्छे से उगाया जाता है वहां से अगर हम, जहाँ से अच्छे से नहीं उगाए जाते अगर वहां पे हम इंपोर्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल वाटर। मीन्स द वाटर मूव्ड वर्चुअली फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। Got that? So these are six categories of water. Those are very important for your exam. Okay, and from these each categories is important for you, and most of the time they use to ask the green water, so you should remember very well. Okay, next comes is kinds of soil water. So from this part many of the students are a bit confused about this classification. I don't know why, but this is very simplification classification. Okay, simple classification, and let us consider it very simple, because when we study something we should think that it's easy. Okay, then only our psychological will be prepared that this chapter will be going to be easy. Okay, so kinds of soil water. So there are three kinds mainly. One is hygroscopic, capillary and gravitational, but there is another kind, that is chemically combined water. Most of the time if we'll see the book or we will check the book, we will find these three kinds: hygroscopic, capillary and gravitational water. Okay, you can see in this picture. Okay, hygroscopic water followed by capillary water followed by gravitational water. Means for example this is the soil and they have moved like this. Okay, they have moved like this. ओके, सो इसका समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल और बहुत ही इजी एग्जांपल पहले आपको बताना चाहूंगा. उसके बाद आफ्टर दैट वी विल डिसाइड वेदर वी हैव अंडरस्टूड और नॉट. फॉर एग्जांपल वी यूज्ड टू कॉल सॉइल एज मदर. ऐसा ना, मिट्टी को हम माँ बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मिट्टी को माँ बोलते हैं, तो मिट्टी को एक लड़की के रूप में देखते हैं अभी. ठीक है, ये हमारे क्लास में है गेलू नाम का एक लड़की है. ठीक है, तो गेलू जो है ना वो कभी भी मतलब प्यार में नहीं पड़ा है. ओके, तो इसका जो पहला प्यार होगा वो बहुत ही खास होगा. ये सुनो, पहला प्यार सबका खास ही होता है. ये सुनो, तो फॉर एग्जांपल गेलू को मतलब बहुत सारा जो गोलू होते हैं हमारे क्लास में वो ट्राई करते हैं. ठीक है, बहुत सारा हमारा जो गोले वो ट्राई करते हैं. फॉर एग्जांपल एक दिन गेलू एक गोलू के साथ मिल जाता है. ओके, एक
गोलू के साथ मिल जाते हैं। तो इनका जो प्यार है, जो उनका जो बॉन्डिंग है, वो क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही स्ट्रोंग होगा, बिकॉज एंड दे विल पुट ए लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक इट हैपन। ओके, जो हमारा गोलू है जो क्लास में, वो बहुत ही एफर्ट्स लगाए कि उसका जो रिलेशनशिप वो बहुत ही स्ट्रोंग हो और बहुत ही क्या है मतलब अच्छा हो। ठीक है, पर फॉर एग्जाम्पल उसके बाद, इस गोलू के बाद जितना भी गोलू आएगा गेलू के जिंदगी में, वो उतना खास नहीं रहेगा। ओके, तो हमारा जो जल है, हमारा जो वाटर है, उसको हम बोलते हैं क्या, द गॉड वरुण देवता। ओके, सो यहाँ पे जो देखिए, ये जो मिट्टी है हमारा, ओके, मिट्टी और जो जल का जो मिलन है वो बहुत ही यूनिक है, और एंड इट्स आई विल से इट इज मैजिक। ओके, तो हमारा जो मिट्टी, जो फर्स्ट लेयर जो मिट्टी है, अभी हम कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। ओके, जो मिट्टी है, ओके, यहाँ पे जो मिलेगा जो पहला वाटर, ओके, जो फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर, मतलब जो गेलू का जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड होगा गोलू, ओके, उनका जो कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैंने बोला। ओके, तो जो फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर टू दिस सॉइल विल बी attached with the high energy and high tension। ओके, बहुत ही एनर्जी खर्च करके वो दोनों मिलेंगे। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल वाटर। ओके, ये रहा हमारा सॉइल। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद जितना भी वाटर आके इसको जोड़ेगा, ओके, जितना भी वाटर आके इसको जोड़ेगा, ओके, पर मिट्टी के साथ इनका जो रिश्ता है वो कम होते होते जाएगा। ओके, कम होते होते जाएगा, मतलब the attachment of soil to the water will be gradually decreased from one point to the another point। ओके, तो एक पॉइंट आएगा जब मतलब कोई भी अटैचमेंट नहीं रहेगा, मतलब पूरा जीरो अटैचमेंट। ओके, मतलब प्यार से भरोसा उठ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्यार से भरोसा उठ जाएगा। ओके, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्री वाटर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फ्री वाटर, मतलब ये फ्री है, कहीं पे भी जा सकता है। ओके, सो दिस पॉइंट वी कॉल्ड इज ए ग्रेविटेशनल वाटर, वी कॉल्ड इट ए ग्रेविटेशनल वाटर। ओके, तो ये फ्री है। ओके, ये जो हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको रिस्पॉन्स करके ये जा सकता है। ओके, यू कैन सी ग्रेविटेशनल वाटर मूव्स फ्रीली इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड ड्रेन्स आउट ऑफ द फील्ड। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो टेंशन होता है हमारा लेस देन 1/3 ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। ओके, लेस देन 0.33 0 to 0.33 माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो वाटर है वो थोड़ा बहुत लगता है। ओके, थोड़ा बहुत अटैचमेंट रखता है। ओके, तो ये जो थोड़ा बहुत ही रखता है अटैचमेंट, ओके, ये क्या आता है, मतलब एक है अट्रैक्शन, ओके, मतलब एडेजिव की तरफ जाता है, और एक कोहेजन की तरह। कोहेजन क्या है, इट इज अटैचमेंट बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल वाटर फॉर वाटर। एडेजन क्या होता है, dissimilar molecule, for example soil plus water। Okay, soil plus water, so you can see this is the soil and this is the first layer of water, yes or no? So they have been combined by the force of adhesion। Okay, adhesion force से वो मिले ही, पर उसके बाद जो भी मिले वो सारे कोहेजन फोर्स की तरफ मिले हैं। ओके, सो दिस बीच का जो पोर्शन है ये वाटर क्या है, वो जा सकता है, पर क्या होगा, ये माइक्रोपोर्स में जाएगा। कहां पे जाएगा, माइक्रोपोर्स में मूव करेगा, माइक्रोपोर्स में मूव करेगा। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल वाटर वो मैक्रोपोर में मूव करेगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज द कैपिलरी वाटर दैट कैन बी अवेलेबल टू द प्लांट। ओके, वो माइक्रोपोर में मूव करके प्लांट को अवेलेबल करेगा। इसका जो टेंशन रेंज है वो कितना है, 1/3 to 31 एटमॉस्फेयर। ओके, 1/3 to 31 एटमॉस्फेयर। ओके, इसका जो बीच का जो परसेंट वो है 15 है। ठीक है, सो 1/3 to 15 तक जितना भी वाटर है वो इजीली आसानी से प्लांट को मिल जाएगा, पर उसके बाद 15 to जो 31 है वो स्लोली अवेलेबल होगा, वेरी स्लोली इट विल बी अवेलेबल टू द प्लांट। इसको हम बोलते हैं
स्लगिश कैपिलरी वाटर। इसका बोलते हैं स्लगिश कैपिलरी वाटर, मतलब वो धीरे धीरे पानी को मतलब पौधे को अवेलेबल होगा और नहीं भी हो सकता है। ओके, सो ये रहा हमारा स्लगिश कैपिलरी वाटर। इसका रेंज है 15 to 31। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये आता है। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन रहा जो कि मिट्टी के साथ बहुत ही हाई एनर्जी के साथ जुड़ा है, वो क्या होगा, वो बहुत ही हाई एडिशन फोर्स के साथ जुड़ा है। वो पानी कभी मतलब पौधा ले पाएगा क्या, उतना भी एनर्जी नहीं है पौधे का कि वो पानी को वो ले सके। उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। वाटर इज हेल्ड टाइटली टू द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय एडजॉर्प्शन प्रोसेस और यू कैन से एडहेसिव फोर्सेस। इसका जो टेंशन कितना है 31 to 10,000 एटमॉस्फेयर है। ओके, बहुत ही ज्यादा टेंशन से वो जुड़ गया है, मतलब भूल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसको अलग करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो है अनअवेलेबल वाटर। तो अगर देखा जाए तो कौन सा वाटर यहाँ का अवेलेबल है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो अनअवेलेबल है। कैपिलरी वाटर अवेलेबल है पर कितना रेंज तक, 1/3 to the 15 रेंज तक अवेलेबल है। 15 to 31 भी उतना अवेलेबल नहीं है, इसलिए नॉन अवेलेबल ही माना जाता है। ग्रेविटेशनल वाटर ये तो फ्री में है, वो तो चला गया। ओके, कोई भी मतलब अट्रैक्शन नहीं रखा, वो तो चला गया, इसलिए ये भी नॉन अवेलेबल है। ठीक है, ये भी नॉन अवेलेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है, इनमें से कौन सा वाटर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्लगिश कैपिलरी वाटर का ऑप्शन नहीं है देन यू शुड चूज कैपिलरी वाटर। ओके, पर अगर स्लगिश कैपिलरी वाटर भी दिया है तो स्लगिश वाटर भी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आपको चार ऑप्शन आएगा, हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी, स्लगिश कैपिलरी, ग्रेविटेशनल। अवेलेबल कौन सा है, कैपिलरी वाटर इज द अवेलेबल। ठीक है, और एक मैंने बोला कि केमिकली कंबाइंड वाटर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखिए कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ओके, तो ये जो 2H2O क्या है, ओके ये वाटर है, ये केमिकली कंबाइंड है जिप्सम के साथ। ओके, और एक होता है MgSO4 7H2O जिसका इप्सम बोलते हैं हम। ओके, तो ये सारा का सारा क्या है, वो केमिकली कंबाइंड है। ओके, ये जो वाटर क्वांटिटी 2H2O, दो मॉलिक्यूल जो वाटर है वो केमिकली कंबाइंड होते हैं अलग मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, समझ में आया। Okay, so that's all for today's class. Okay, and in the next class we'll meet soon, okay, and with some new concepts and new chapters. Okay, so if you have not subscribed to our channel yet then please subscribe to our channel, and अगर आपको एग्रोनॉमी जेआरएफ क्लास में रजिस्टर करना है देन आप 8917551457 पे कांटेक्ट कीजिए, या यहाँ पे भी जो नंबर दिया है उस पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, एंड वी विल कम्युनिकेट टू यू। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।